نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مشکوٰۃ المصابیح جلد ثانی کتاب النکاح سے یہاں سے آغاز ہو رہا ہے کتاب کا۔ نکاح کے متعلق آپ علیہ السلام کی حدیث شریف بھی ہے، النکاح من سنتی، مشہور حدیث ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، متعدد سب انبیاء نے سوائے ایک نبی کے سب نے نکاح کیے ہیں۔ نکاح کے بے شمار فوائد ہیں، ان میں سے دو بڑے فائدے یہ ہیں، آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے، دوسرے کہ اللہ تعالیٰ نے نسل کا جو ذریعہ رکھا ہے وہ نکاح کے ذریعے جائز صورت جو ہے وہ یہی ہے۔ کچھ باتیں ابتدائی ہوئی تھی، یہاں سے پہلی فصل ہے الفصل الاول۔ کتاب پڑھ لی آپ نے؟ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، متفق علیہ۔ یعنی یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، پہلی روایت ہے کتاب النکاح سے۔ سمجھ میں بات؟ راوی حضرت عبداللہ بن مسعود مشہور صحابی ہیں، آپ علیہ السلام کے خدمت گزار ہیں۔ اکثر زندگی آپ علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے اسلام لانے کے بعد حاصل کیا وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں، صحابہ اور مدینے والے یہی سمجھتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود تو آپ علیہ السلام کے گھر والوں میں سے ہیں، یعنی اس طرح آپ علیہ السلام کے گھر میں آنا جانا اتنا زیادہ تھا، اس اعتبار سے ان کو لوگ سمجھتے تھے کہ آپ علیہ السلام کے گھر میں سے ایک فرد ہے۔ سمجھ میں گا؟ جی 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 آپ نے یہ لکھنا ہے نا۔ دوسرا یہ کہ جو ہمارا یہ درس ہے یہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اسی سبق کی مناسبت سے ہی آپ سوال جواب وغیرہ کر سکتے ہیں، اور اسی مناسبت سے ہی محدود یہ کلاس سے ہٹ کر سبق کے متعلق زیادہ باتیں ہوں۔ سمجھ نہیں با؟ چونکہ یہ چینل پہ آگے اپلوڈ ہوگا۔ سمجھ نہیں با؟ آپ اپنی اس میں لکھیں کاپی پہ۔ سمجھ نہیں با؟ اگر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت۔ نوجوانوں کو بطور خاص خطاب ہے کہ یہ جو شادی کے ذمہ داری کے کام ہے جوانی میں ہوا کرتے ہیں، بعض لوگ بڑھاپے تک لے جاتے ہیں، تو جو اصل فوائد ہیں پھر وہ اصل فوائد نہیں حاصل کر سکتے، اس لیے آپ علیہ السلام نے شباب کا ذکر کیا ہے۔ شباب یہ جمع کا صیغہ ہے، شابون سے ہے۔ سمجھ نہیں بات؟ معاشر کہتے ہیں مخصوص جماعت کو جو کسی خاص وصف پر مشتمل ہو، جیسے یا معاشر الرجال یا معاشر النساء یا معاشر الجن یا معاشر الانس۔ تو معاشر الرجال یا معاشر الشباب مخصوص افراد کے اوپر ہے کہ جن کے اندر کوئی خاص وصف موجود ہو، یا معاشر الانس کہا تو اس سے مراد انسانوں کی ایک جماعت ہے کہ جس میں انسان میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں، مراد اس سے انسان ہوتا ہے۔ یا معاشر النساء کہا تو اس سے مراد عورتوں کی جماعت ہے۔ عورتیں جب بولا جاتا ہے تو اس سے ایک مخصوص قوم یا مخصوص جماعت کا ذہن میں آتا ہے۔ تو یہاں سے مراد یا معاشر الشباب یعنی نوجوان مراد ہے۔ عام طور پر ان کو خطاب ہے تو اس لیے شباب کا ذکر کیا گیا ہے، بوڑھا بھی شادی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو جو چیز عام ہوتی ہے اس لیے اس کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع،
मिनकुम तुम में से जो कोई भी ताकत रखता हो, अलबाता निकाह और जिमा की मुराद ये है, यहाँ से दोनों माने लिए गए। अलबा इसके अंदर भी मुख्तलिफ लुगात है, अलबाअतुन भी ये एक लुगत है और दूसरी लुगत बाउन है, ये दूसरी लुगत है, समझ में बात। और तीसरी लुगत अलबाहतुन है और चौथी लुगत अलबाहुन है। बाह जिसको बाह भी कहते हैं यानी ताकत। सबका माना तकरीबन एक है। बाअतुन जो हमजा है इससे मुराद मकाम देना है, चूंकि शादी में मकाम दिया जाता है इसलिए इसका बयान है, समझ में बात। और दूसरी लुगत बाहतुन हा के साथ है और बाहुन, ये जिमाई कुव्वत को कहते हैं कि मर्द औरत जो आपस में मिलते हैं उसमें कुव्वत हो तो उस कुव्वत के ऊपर बोला जाता है। तो शादी के अंदर ये चीज भी जरूरी होती है। तो यहाँ क्या माना है, मुख्तलिफ माने किए गए हैं। हदीस से माना क्या मुराद है वो हम बताएंगे, समझ में बात। मन इस्तता मिनकुमुल बाअता तुम में से जो कोई भी ताकत रखता हो जमा के लवाजमात की, फल्यतज़व्वज बस उसको चाहिए कि वो शादी जरूर करे, समझ में बात। फल्यतज़व्वज वो जरूर शादी करे। फ़इन्नहु इसलिए कि ये निकाह करना अग़ज़्ज़ु लिलबसरी नजर को बहुत ज्यादा झुका देता है, व अहसनु लिलफरजी और शर्मगाह को बहुत ज्यादा महफूज कर देता है। इसका फायदा समरा बताया गया है कि शादी का फायदा क्या है, नजर बच जाती है, यानी बद नजरी दूसरों की तरफ, दूसरी औरतों की तरफ जो नजर जाती है आम तौर पर शादी के ना होने की वजह से जाती है। तो जब बंदा शादी कर लेता है वही मकसद अपनी बीवी से पूरा हो जाता है, इसलिए फिर उसको दूसरी जगह के ऊपर नजर उठाने की जरूरत क्या है, समझ नहीं बात। दूसरा फायदा यह होगा कि उसकी शर्मगाह महफूज ज्यादा महफूज हो जाएगी, इसलिए कि जो दूसरी औरत के पास है वही अपनी औरत के पास मौजूद है, इसलिए अपनी बीवी के पास जाएगा, अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा करेगा जो कि सवाब का काम है, तो दूसरी औरत से महफूज हो जाएगा जो कि गुनाह का काम है, समझ में बात। अमल लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम। अलबाअता से मुराद क्या है, तुम में से ये बात रह गई थी, तुम में से जो कोई बंदा भी, यहाँ मुराद माना जो हम करेंगे जिमा के लवाजमात, जिमा यानी मियाँ बीवी के मिलाप के मुतालिक जो लवाजमात होते हैं उनकी ताकत रखना जरूरी है। मियाँ बीवी से मिलने से पहले जो लवाजमात है, अखबार है, नफका है, घर का खर्च है, बीवी बच्चों का खर्च है, तो ये उसके लवाजमात है, समझ नहीं ना। निकाह और जिमा इससे दोनों मानों को मुराद लिया गया है, लेकिन जो राजे माना है वो निकाह मुराद है। अल्लामा तीबी रहमहुल्लाह ने जो माना मुराद लिया है वो निकाह और जिमा, और राजे जिमा को लिया है। फिर हम इसको सिर्फ अगर जिमा का माना करें, तुम में से जो कोई बंदा भी जिमा की ताकत रखता हो तो वो निकाह करे, माना अगर हम सिर्फ ये लें तो एक खराबी लाजिम आती है, वो ये कि आगे है जो ताकत ना रखे हो वो रोजा रखे, यानी जो जिमा की ताकत नहीं रखता वो रोजा रखे, तो माना गलत हो जाएगा। इसलिए कि रोजा तो है ही जिनसी ख्वाहिश के गलबे के लिए, जब एक चीज मौजूद नहीं है तो फिर रोजे का हुक्म का कोई फायदा नहीं होगा, तो माना गलत होगा। तो माने को दुरुस्त रखने के लिए जो अल्लामा तीबी वाला माना है, तुम में से जो कोई बंदा जिमा के लवाजमात की ताकत रखता उसको चाहिए वो शादी करे, ये एक माना है, ये भी दुरुस्त है, समझ नहीं बात। दूसरा माना मन इस्तता मिनकुमुल बाअता, तुम में से जो कोई बंदा निकाह की ताकत रखता हो तो उसको चाहिए कि वो शादी करे, ये माना भी बिल्कुल सही और ये ज्यादा पसंदीदा माना है, समझ नहीं बात। फल्यतज़व्वज इसको चाहिए कि वो शादी करे, फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़रज, इसलिए कि नजर को बहुत ज्यादा ये निकाह करना झुका देता है और शर्मगाह की बहुत ज्यादा हिफाजत करता है, समझ नहीं बात। वमन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम, और जो कोई, इसका अतफ़ पिछले जुमले के ऊपर है, वमन लम यस्तति यानी अलबाअता के ऊपर है, और वमन लम यस्तति और जो कोई ताकत ना रखता हो इसके ऊपर यानी निकाह के ऊपर,
फ़अलैहि वमन लम यस्तति, और जो कोई ताकत ना रखता हो, किस चीज की ताकत ना रखता हो, निकाह की, फ़अलैहि बिस्सौम, बस उसके जिम्मे क्या है, लाजिम है रोजा रखे। अला का माना बता रहा है कि अला इल्जाम के लिए आता है कि एक आधा रोजा रखने से फायदा नहीं होगा, बल्कि मुसलसल उसको रोजे रखने पड़ेंगे, फिर उसकी जिनसी जो ख्वाहिश कम होगी। अगर ना खाने भी दबा के खाता रहे और बीवी भी पास ना हो, और फिर उससे जिनसी हिजान, जिनसी ख्वाहिशात मजीद बढ़ेगी, तो जो कि खतरा है गुनाह का। तो इसलिए उससे बचने के लिए एक तरीका का, जो बड़े नुकसान से बचा जाता है, फिर छोटा नुकसान बर्दाश्त किया जाता है। बड़ा नुकसान यही है कि आदमी ज़िना कर बैठे तो बड़ा गुनाह है, छोटा नुकसान ये है कि थोड़ा सा कम खा ले और तो रोजा रख ले। तो ये तिब्बी एतबार से और आप अलैहिस्सलाम का मशवरा है कि उसको चाहिए फ़अलैहि बिस्सौम, बस उसके ऊपर क्या है, रोजा है, यानी वो अपने ऊपर रोजे को लाजिम कर ले। लाजिम का जो हम माना कर रहे हैं वो अल्लाह के जरिए कर रहे हैं, समझ में बात, यानी वो मुसलसल फिर रोजे रखे। ये रोजा रखना उसके ऊपर कोई फर्ज वाजिब नहीं है, ये रोजे का सवाब होगा, इसलिए नियत और इरादा अच्छा है, समझ में बात। फ़इन्नहु लहु विजाउन, बस बेशक ये उस बंदे के लिए, यानी ये रोजा रखना लहू उस बंदे के लिए ये जो ताकत नहीं रखता निकाह की। विजाउन, विजाउन का माना है खुशियतैन को कूट देना, खस्सी कर देना। बस ये जो रोजे रख रहा है, बस ये उसके लिए ये रोजा रखना विजाउन ख्वाहिश को कूट देना है, ख्वाहिश को दबा देना है, समझ बात। अब इस्लाम में चूंकि खस्सी होना तो जायज नहीं है, साहबा ने बाज ने तो इजाजत मांगी, आगे हदीस भी आ रही है, अब इस्लाम ने इजाजत नहीं दी। अब ये कि जानवरों में किसी को खस्सी कर सकते हैं, ये फिकी मसला है। जानवरों में भी शवाफे के नजदीक छोटे जानवर को खस्सी कर सकते हैं, अगर उसकी अच्छी नीयत, अच्छे इरादा है कि गोश्त अच्छा मिलेगा, तो इसमें गुंजाइश है, खस्सी कर सकते हैं। खस्सी जानवर की कुर्बानी भी दुरुस्त है। अलबत्ता बड़े जानवर को शवाफे इजाजत नहीं देते गए, जानवर बड़े जानवर को इसमें अजियत ज्यादा, तो उसको खस्सी करना दुरुस्त नहीं है शवाफे के नजदीक। अहनाफ के नजदीक हराम जानवरों में तो बिल इत्तेफाक है, किसी के नजदीक भी हराम जानवर को खस्सी करना जायज और दुरुस्त नहीं है, इसलिए इसमें खामखा की अजियत और इज़ा है। अलबत्ता जो जानवर खाए जाते हैं उसको खस्सी किया जाता है अहनाफ के नजदीक मुतलकन, इसमें चूंकि कैद नहीं है, इसलिए अहनाफ कहते हैं कि मुतलकन बड़ा जानवर हो या छोटा जानवर, खस्सी करने की कोई जरूरत हो, खस्सी कोई करना चाहे तो जानवर को, हलाल जानवर को खस्सी कर सकते हैं। अलबत्ता शवाफे के नजदीक जो छोटे जानवर है, यानी नाबालिग छोटे जानवर कहलाते हैं, उनको खस्सी किया जा सकता है। खस्सी करने का फायदा ये कि उसका गोश्त अच्छा होता है, इसलिए कि सारी चीजें हलाल चीजें अल्लाह ने इंसानों के फायदे के लिए बनाई हैं, तो इसलिए ये फायदा कोई उठाना चाहे तो उठा सकता है। समझ में आई बात सबको। ये एक हदीस है, इंशाल्लाह फिर आगे हदीस बढ़ाकर पढ़ेंगे। समझ में आई बात है, कोई सवाल की बात है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।